Hello students, today we are going to do the next topics, that is atomic number and mass number. So after the discovery of electrons, protons and neutrons led to the study of atomic numbers and mass numbers of atoms. So firstly we will learn about the atomic numbers. What are atomic numbers? Atomic numbers क्या होते हैं? Atomic number is the number of protons present in the nucleus of an atom. It is denoted by letter Z. We donate atomic number by letter Z. So the formula to calculate atomic number is atomic number is equal to number of protons. How many protons present in a atom is the atomic number. So, and as you know that there are equal number of electrons also, because you have to make the atom neutral. So there will be equal number of negative number as well as positive number. So basically our atomic number is number of protons or number of electrons, because if there are 6 protons, there should be minus 6 electrons. So then only we will have the atom neutral. So atomic number is associated as there are how many number of protons in an atom, that is the atomic number, and even the number of electrons also accommodate the atomic number. So how many electrons are there in an atom gives you atomic number. Okay, so I am taking one example. For example, I am taking carbon atom. Carbon atom contains 6 protons, hence its atomic number is going to be 6. So all atoms of the same element have the same atomic number. Okay, thus by knowing the atomic number of an element, we can determine the name of the element. So elements are arranged in the periodic table in the increasing order of their atomic number. Atomic number is written as a subscript. Always, if suppose I am having X as an element, atomic number is always written as a subscript after the element. Okay, by if we know the atomic number, we can know the name of the element. And in the periodic table, always atomic number keeps on increasing, 2, 3, 4, 5, so it goes on increasing. You will study this periodic tables in the next chapter. Next is mass number. Mass number, you know na, I have told you mass number means the nucleus. The mass of an atom is concentrated on the nucleus. So what does the nucleus contain? Nucleus contains protons as well as neutrons. So mass number is number of protons plus number of neutrons. And we donate mass number by letter A. Okay, we donate mass number by letter, capital letter A. So what is the formula? Number of protons plus number of neutrons. And we can write number of protons as capital Z because these are atomic number. So in the atomic number, if we add number of neutrons, we'll get the mass number, that is capital A. And where we write this mass number in the to express the element, suppose we are having X as an element, so Z is written as a subscript and A is written as superscript. Okay, at the top. Clear? So by this you represent the element by using atomic number and mass number and atomic number. So for example, in carbon atom has 6 protons and 6 neutrons in its nucleus. So what is its mass number? 6 plus 6 becomes 12. So mass number is 12. So mass number is written as superscript at the top and subscript at the bottom is your atomic number. Subscript is your atomic number, superscript at the top is your mass number, at the bottom is your atomic number. Okay,
and if the atomic number and mass number of an element are known, we can easily determine the number of electrons, protons and neutrons in that atom. For example, I know oxygen. Oxygen atom has atomic number 8 and mass number 16. So from the atomic number what we will get? Number of protons as 8 and same number of electrons means 8 and mass number is 16. So mass number में से हम protons को minus करेंगे, will get the neutrons. 16 minus 8 becomes 8. Okay, so you will learn this first 20 elements in the periodic table, the atomic number and mass number of first 20 elements. You will learn this table. This is important. Okay, sometimes the mass of an atom of the same element may vary. समटाइम्स क्या होता है, जो एक एलिमेंट होता है उसका मास वेरी करता है, सेम एलिमेंट का मास वेरी करता है. क्यों करता है? दिस मीन्स दैट एटम हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स तो डिफरेंट नहीं हो सकते क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उसमें जब उनके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? वो आइसोटोप्स होते हैं. क्या होते हैं वो एटम्स को क्या बोलते हैं? हम आइसोटोप्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम. तो ये कैसे होंगे? इनके जो मास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. प्रोटियम में क्या होता है? हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर, एक मास नंबर. ड्यूटेरियम में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, इनका 1 ही रहेगा बट मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा. और वो कैसे डिफरेंट होगा? इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे. तो इसमें अगर आपके पास एक एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन्स भी 1 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है, तो इसके यहाँ पे न्यूट्रॉन्स क्या है? 0 है. और यहाँ पर अगर प्रोटॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 2 में से 1 गया 1, तो न्यूट्रॉन 1. फिर एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा? 3 में से 1 गया 2. तो इसका मास नंबर इज़ डिफरेंट ऑफ द सेम एलिमेंट. हाइड्रोजन एटम में मेरे पास, इस हाइड्रोजन एटम में इनका मास नंबर डिफरेंट आ रहा है बट एटॉमिक नंबर सेम है. तो इन एटम्स को हम क्या बोलते हैं? जिसमें मास नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स. क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स. क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स. एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. कार्बन. कार्बन का आपको पता है 6 आपका एटॉमिक नंबर, 12 आपका मास नंबर. तो एक ये होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 13. इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के. ठीक है. एक और चीज़ आएगी हमारे पास, आती है एक और चीज़ आती है जो आपकी बुक में नहीं है, स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. डेट इज़ आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग आर्गन एंड कैल्शियम. अब आर्गन का भी आपका क्या होता है? आपके सेम मास नंबर होते हैं इनके, बट इनका सेम मास नंबर होगा बट इनके डिफरेंट आपके एटॉमिक नंबर होंगे. ठीक है. दोनों का मास नंबर 40 होगा बट इनके एटॉमिक नंबर एक का 18 है और एक का 20 है और ये एलिमेंट्स भी डिफरेंट है. आइसोबार्स क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ओके. तो अगर इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो क्या फ़र्क आ रहा है इनमें? इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग डिफरेंट. क्योंकि एटॉमिक नंबर हमें क्या देता है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स देता है. हमें क्या देता है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. इनके मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है. और इनके एलिमेंट भी डिफरेंट है. एक आर्गन है और एक कैल्शियम है और इनमें आपके पास एलिमेंट सेम होते हैं. तो सेम एलिमेंट हैविंग same atomic number but different mass number is called isotopes, and different elements having same mass number different atomic number is called isobars. क्या होते हैं ये आपके? आइसोबार्स होते हैं. तो आइसोटोप्स जो होते हैं आपके, दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर मास.
बट पोजेसेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो आपके आइसोटोप्स होते हैं वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं बस, बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पोजेस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट शो करेंगे बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर रहेंगी आइसोटोप्स में। ठीक है, पहले जब हम करते थे हर चीज़ का हम मास नंबर स्टैंडर्ड निकालते थे तो हम हाइड्रोजन को लेते थे। लेटर ऑन साइंटिस्ट ने इसको रिप्लेस कर दिया कार्बन 12 से, तो हम अब हमेशा हम कार्बन 12 वाले को लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड टू कैलकुलेट एनीथिंग। ओके, फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, आपको एनर्जी शेल्स बताए थे बोहर मॉडल के, उसी से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। मैंने आपको बोला था वी आर हैविंग शेल्स लाइक K, L, M एंड N, और आप अपनी मर्ज़ी से इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते। इनका एक फॉर्मूला होता है 2n²। अगर आपका K का नंबर क्या होता है 1, तो आपके K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, L में 8, M में 18 एंड 32। 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 से कम आ जाएंगे। ठीक है, या तो 2 आएंगे या 2 से कम आएंगे, बट 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो जो न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे एक और शेल बनाओगे, उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 8 से कम आ जाएंगे बट 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे। क्या आएंगे 8 से कम आएंगे बट 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे। ओके, समझ आया सबको। और ये आपके कुछ आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे रखी हैं, जैसे हाइड्रोजन। मैं आपको बताती हूँ हाइड्रोजन, आई जस्ट रब इट। ओके, सी हाइड्रोजन में आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। जब आप इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लर्न कर लोगे ना, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आ जाएंगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा, क्योंकि इसके पास और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन बना दोगे। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, आप देख रहे हो 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब लिथियम का देखो, लिथियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2, तो पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 होता है, सॉरी, पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हाउ मेनी आर लेफ्ट, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट, देन 1 इलेक्ट्रॉन विल गो इन द नेक्स्ट शेल। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं आएंगे पहले वाले शेल में। मैंने आपको बोला था 2 से कम आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो पहले शेल में हमेशा 2 ही आएंगे। जैसे आपके, मैं बोल रही हूँ एक आपका केज है, ठीक है, जेल है, मैं ये बोल रही हूँ इस केज में सिर्फ 2 कैदी रह सकते हैं, 2 प्रिजनर्स रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। बेशक उसमें एक प्रिजनर रह सकता है और 2 रह सकते हैं, 2 से 3 नहीं हो सकते। तो उसमें पहले वाले केज में, केज में 2 ही रहेंगे जो न्यूक्लियस के पास है। उसके बाद जो नेक्स्ट केज में अगर 3 प्रिजनर्स हैं तो पहले वाले केज में 2 आ जाएंगे, फिर जो थर्ड प्रिजनर है वो नेक्स्ट केज में जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद आता है आपका 4 नंबर, बेरिलियम का क्या है 4। पहले वाले केज में तो 2 ही पोजीशंस थी, 2 ही हमारे पास जगह थी और 2 इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी जगह ऑक्यूपाई कर ली। अब जो नेक्स्ट बचेंगे वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे, तो 2 नेक्स्ट वाले में आ गए। फिर आप 5 में देखो, बोरोन में, इसमें भी 2 पहले आएंगे, फिर 3 नेक्स्ट वाले में जाएंगे। तो सो ऑन आपके ऐसे देखो, कार्बन में देखो, इसमें 2 आए फिर 4 आए, इसमें 2 आए फिर 5 आए, नेक्स्ट में इसमें 2 आए 6 आए, इसमें 2 पहले आ गए 7 आ गए। अब इसमें 2 आए हैं और 8 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए ना। अब इसकी कैपेसिटी सिर्फ 8 की थी, 8 पीपल्स को ही हैंडल कर सकता है, 8 से कम पीपल को भी हैंडल कर सकता है, बट 8 से 9 नहीं कर सकता। तो अब आप ये सोडियम वाले में देखो, इसका क्या हो रहा है, पहले में वाले में 2 चले गए, अब कितने बचे 10, कितने बचे हैं 9 बचे हैं ना। तो दूसरे वाले में 8 चले गए, कितने हो गए 10 हो गए। अब कितने बचे हैं, वन पर्सन इज लेफ्ट ना, तो इट विल गो इन द थर्ड शेल। ओके, दिस इज द केस, इट विल गो इन द थर्ड शेल। तो पहले वाले में सिर्फ 2 लोगों की कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा ये हैंडल नहीं कर सकता। नेक्स्ट वाला 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैंडल कर सकता है, इससे कम कर लेगा बट नॉट मोर देन 8। फिर वो थर्ड शेल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सो ऑन चलते रहेंगे। यू हैव टू लर्न टिल 20 तक आपको इनके शेल्स आने चाहिए।
आपके सिलेबस में 20 तक हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला है फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जो मैंने आपको हीलियम के केस में बताए हैं, ठीक है। तो इन द इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल सेम हैपन्स आफ्टर 8th इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड द सेकेंड शेल, ठीक है। फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स जब सेकेंड शेल में पूरे हो गए हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो बच गए हैं दैट विल गो इन दी थर्ड शेल। अब वो आगे किस में जाएंगे, थर्ड शेल में जाएंगे। बियॉन्ड द सेकेंड शेल इवन दो द एनर्जी शेल्स कैन अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, दे अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने आपको बोला था थर्ड शेल में 18 आ सकते हैं, मैंने आपको यही बताया था ना 2, 8, 18 एंड 32, यही बोला था ना 2n² रूल के अकॉर्डिंग भी। पहले वाले में 2 आएंगे, सेकंड वाले में 8 आएंगे और दूसरे वाले में 18 आएंगे। बट ये रूल ना फेल हो जाता है, ये रूल फेल हो जाता है। ये पहले 2 शेल्स तक तो ठीक चलता है, पहले वाले में 2 आएंगे और सेकंड वाले में 8 आएंगे, बट थर्ड शेल में 18 नहीं आएंगे, थर्ड शेल में भी 8 ही आएंगे, 18 नहीं आएंगे। ये रूल क्या हो जाता है हमारा, कंप्लीटली फेल हो जाता है। ये सिर्फ 8 ही ले सकता है। फर्दर इलेक्ट्रॉन्स goes to the next shell in case of potassium calcium where electrons move to the fourth shell। फिर उसके बाद ये फोर्थ शेल में चले जाते हैं। ये 8 ही ले सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं ले सकता। इन्होंने साइंटिस्ट ने बाद में बोला भी ये 8 से ज़्यादा नहीं ले सकता है। सो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स ही ऑक्यूपाई करेगा। सो एटम्स हैविंग कम्प्लीटली फिल्ड आउटर और वैलेंस शेल्स आर मोस्ट स्टेबल। जिन एटम्स के पास कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हीलियम का केस था, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके पास न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये कम्प्लीटली फिल्ड था। अब ना इसको ज़रूरत है देने की, ना इसको लेने की ज़रूरत है, तो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये स्टेबल है। इसी तरह से नियॉन का केस था 2, 8, पहले वाले में 2 आए, फिर नेक्स्ट वाले में 8 आ गए। अब इसको ना 8 आए हैं, 8 से कम तो नहीं है ना, इसके पास 8 हैं प्रॉपर, 8 से ज़्यादा नहीं है इसके पास, थर्ड शेल में इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, इसका शेल कंप्लीट है, तो ये भी आपका स्टेबल है। तो जो एटम्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, जिनका आउटर शेल, वो क्या होती हैं, उनकी वैलेंसी क्या होती है, 0। तो फॉर एग्जांपल आर्गन हैज़ कंप्लीट फिल्ड वैलेंस शेल, तो इनकी वैलेंसी क्या होंगी, 0। तो एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स टेंड टू अटेन कम्प्लीटली आउटर शेल आइदर बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। हर कोई अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, हर कोई अपने आप को क्या बनाना चाहता है, स्टेबल बनाना चाहता है। अब देखो सोडियम है, सोडियम के पास बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है ना, तो ये 1 को इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना बेहतर समझेगा 7 लेने की बजाय। 7 लेगा तो कितनी सारी एनर्जी लगेगी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं ना, वो क्या होती है, आपकी वैलेंसी होती है। क्या होती है, वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, सबसे बाहर वाला शेल कितने हैं, 1, तो 1 इसकी वैलेंसी है। तो ये क्या करेगा, लूज़ करने की कोशिश करेगा। कार्बन के पास कितने हैं, 4 हैं, तो ये 4 गेन भी कर सकता है और 4 लूज़ भी कर सकता है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के पास आउटर शेल में 7 है, तो इसको 8 बनाने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्या कर लेगा, ही विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। जिसको बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है वो क्या करेगा, गेन करेगा। जिसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे ही देगा, भी इतनी एनर्जी का क्यों मैं वो करूँ। ओके, बाय दिस योर चैप्टर इज़ complete. If you face any problem, I'll tell you in the Zoom class. Thank you so much.